ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਔਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਏ ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਰੋਡ ਔਰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਲੰਘੀ 18 ਜੂਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਰੋਡ ਈਰਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो हम बहुत खुश हैं हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से फ्रेंड से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। जी, कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने कुछ अगर उस मूवमेंट को जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी जी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प्ड अस अ लॉट। मेरा नाम वर्दा है, मैं कश्मीर से हूँ और हम लोग पहला बैच है जो इवैक्यूएट हुआ है ईरान से, उर्मिया से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने क्या फेस वहाँ पर किया? हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे, दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। शेख अफसा। आज आप वापस आ रहे हो वहाँ से, कितनी खुशी हो रही है? क्या खुशी है वापस आने की क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। खुश हूँ मैं, बस वी आर बैक टू आवर कंट्री। बस क्या कहना चाहेंगे क्योंकि वहाँ जो आपने देखा, अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर? टू बी ऑनेस्ट
जो मेरी सिटीज वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इन अदर सिटीज लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो खराब ही थे, आपने तो देखा होगा न्यूज़ में। ये तो किस गाँव है? मैं JNK से हूँ, तो मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स ने मैं बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने, हाँ ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आगे बहुत खुशी है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, पूरा देश खुश है। थैंक